Hello, good morning, everyone. How are you? I hope you may be very happy in this morning time. So, welcome back to my YouTube channel Universal Life Journeys, my friends. So, this is the wonderful opportunity time to come before you with the grammars. Okay, my friends, grammar is very important for our daily life journeys. When we want to learn the English grammar book, then we have to know the proper grammars, friends. When we want to write some sentence or some paragraph or some letters, there is needed grammar, my friends. Okay, so grammar is the most important in our English journeys. So today I came with a grammar for all of you, my friends. Okay, so we will learn the today grammars. So this is the prepositions. Prepositions you might learn in your dictionaries or in your grammar books or in your books, school books. These all the words are there available coming, my friends, but they how we have to use this all these words, this preposition that you do not know still, my friends. Okay, so today we will learn these prepositions, how we have to use, how where we have to use, how we have to make sentence that you do not know still. So today we will learn the these prepositions, all those prepositions. These prepositions फॉर कोई स्थल, समय, दिशा और गति के लिए यूज किया जाता है, माय फ्रेंड्स. ओके, कोई स्थल बताता है तो कोई समय बताता है, कोई दिशा बताता है, कोई गति बताता है. ये जो प्रेपोजिशन है हम इसे यूज कर सकते हैं, माय फ्रेंड्स. ओके, सो टुडे we going to learn the prepositions. Okay, so my friends, one request is there. If you are the one first times, please subscribe my videos, okay, and have one likes. And before going to videos, my friends, if you want to learn the your grammars, if you want to learn your grammar properly, basically, then you have to watch these videos fully, my friends. Then you can properly understand. Okay, so don't skip the videos. Okay, and you have to watch fully. So whatever some of confusions may be there, you all the confusion will remove from your life. Okay, so prepositions are here 27, but all these 27s I not going to tell you, my friends, not going to teach you. Okay, and one thing is that I am not a teacher. Okay, what and how I have learned this English, that tricks I going to teach you. Okay, my friends, I am not teachers and no one has teach me English. Okay, this is the my teachers. This grammar book is my teacher. From these books I have learned the grammar. Okay, my friends, so whatever things I will teach you, that is how I have improved my daily English. So that tricks I will teach you and I will tell you, my friends, from these books, from this grammar book. This is the my teachers. Okay, this is the broken, many page has tear, but still I have taken care of this grammar books because of this is the my teachers. So I have take care of and I am always keeping with me, my friends. I am loving these books because of through these books I have learned the more many things, many areas I have mistake. I immediately going and watching where I have made mistake, what is mistake in my life, that I immediately going in these grammar books and I finding my friend. Okay, so today I want to tell you, teach you secret tricks, my friends. When you want to improve your English, then how many things you have to take care of, how many things you have to follow, and what to do, that I going to tell you, my friends. One first point is that you have to make one personal diaries. Okay, नाउ सपोज समझ लीजिए मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ ट्रिक्स जो मैंने सीखा है, कैसे मैंने इंग्लिश सीखा है, वो जो ट्रिक्स है वो मैं आपको भी सिखाती हूँ. ओके, सो इफ यू हैव द योर पर्सनल डायरीज, then you can write down your diaries. When we listening only, we can forget. So we have personal diaries, we can immediately open and read and we can understand. Okay, so today prepositions are 27 preposition, but all those preposition I will not tell you. Okay, my friends, in these videos
So continuous watch these videos and watch and understand also. Okay, first at means तरफ एक दिशा बताता है. At a very small words but it is very important. Okay, this preposition. At you might know in your books, in your grammar books, in your writings, when your teacher teaching, there also many times you heard this at. But how to make sentence that you do not know still, so that I going to teach you, my friends. Okay, so this एट है वो कोई जगह और समय के लिए यूज किया जाता है. कोई जगह के लिए और समय के लिए हमें एट को यूज कर सकते हैं माय फ्रेंड्स. ओके, सो हम सेंटेंस बनाएंगे. कैसे सेंटेंस बनाते हैं? दर्शन केम एट 5 o'clock. जो दर्शन है वो 5 o'clock आया. 5 o'clock जो समय है, समय के लिए एट का हमें यूज किया है. सो दर्शन केम एट 5 o'clock. ये हमें एक 5 टेंस में बताया गया है. केम, कम का केम हो गया है, तो दर्शन केम एट 5 o'clock. दर्शन है वो 5 बजे आया है. एंड भारवी मेट हिम एट द स्टेशन. स्टेशन क्या है? एक स्थल बताता है, एक जगह का नाम बताता है. तो भारवी मेट हिम एट द स्टेशन. भारवी उसको कहाँ मिला है? स्टेशन को मिला है. हमें समय और जगह दोनों के लिए एट का हमें यूज कर सकते हैं. एट हमें कहाँ कहाँ यूज करना है? एक तो समय बताता है और एक तो जगह बताता है. तो यहाँ में भारवी है 5 बजे आया है. भारवी कहाँ में 5 बजे आया है? स्टेशन में आया है. और स्टेशन में जो भारवी उसका फ्रेंड है उसको मिला है. तो दर्शन केम एट 5 o'clock. भारवी मेट हिम एट द स्टेशन. ओके, सो आई hope that you understood these sentences. Okay, next sentence will make एट है एक छोटा सा गांव के लिए भी यूज कर सकते हैं. सपोज आई बोर्न इन माई कोटा विलेज. माई जो विलेज है एक छोटा सा विलेज गांव है, तो हमें इसके लिए भी एट का उपयोग कर सकते हैं. और हम एक बड़ा सिटी में रहते हैं, बॉम्बे जैसा, अमेरिका जैसा बड़ा बड़ा कंट्री में रहते हैं, तो हमें उसके लिए इन यूज कर सकते हैं. We live in America, we live in Bombay, we live in Ahmedabad city, like this. If we are living, then we can use. But here एट है एक जगह बताते हैं, एक कोई गांव में रहते हैं, तो इसके लिए हमें एट यूज कर सकते हैं. You live in your small villages. Okay, whatever your village name you can mention, my friend. Okay, here next सेंटेंस वी लिव इन बॉम्बे. हम एक बॉम्बे सिटी में रहते हैं. शी लिव्स इन अमेरिका. शी मीन्स एक लड़की के लिए यूज करते हैं. ही एक लड़का के लिए यूज कर सकते हैं. वी है एक से ज्यादा होते हैं, इसके लिए वी यूज कर सकते हैं. प्रोनाउंस, इसको हमें बोलते हैं प्रोनाउंस. वी, ही, सी, इट, दे, ये क्या है? प्रोनाउंस है. इसको हमें प्रोनाउंस बोल सकते हैं. ओके, so remember these things. Now we will learn the in and into. In and into हमें कैसे यूज कर सकते हैं? in हमें अंदर माँ, अंदर. in means अंदर, into means अंदर. ये दोनों का एक ही अर्थ आते हैं, उसका एक ही ट्रांसलेशन होता है. तो in है वो एक स्थिरता में बताता है, और into है एक गति चुकौती है, गति बताते हैं. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसके लिए हमें into यूज कर सकते हैं. और in है स्थिरता में. सपोज आई एम इन द रूम्स, आई एम सिटिंग इन द रूम्स, आई एम इन माई किचन रूम्स, आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द माई क्लास रूम्स. हमें जो 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 स्थिरता में है, इसके लिए हमें इन यूज करना है फ्रेंड्स. ओके, एंड इन टू है एक गति बताते, गति कोई आ रहे हैं, हमारे रूम में कोई आ रहे हैं, गार्डन में कोई आ रहे, कोई ऑफिस में आ रहे, कोई होटल में आ रहे, कोई खाने के लिए आ रहा है, कोई बगीचा में आ रहे हैं, तो हमें इसके लिए इन टू यूज करना है. तो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है? भारवी इज कमिंग इन टू द गार्डन. जो भारवी नाम का लड़का है कहाँ में आ रहा है? एक गति कर रहा है, आ रहा है, तो उसको हमें इनटू हमें गति बताते, आ रहे. भारवी इज कमिंग इनटू द गार्डन. जो भारवी है गार्डन में आ रहा है. माई पेरेंट्स आर कमिंग इनटू रूम. मेरा पेरेंट्स है वो मेरे रूम में आ रहा है.
और माई टीचर इज कमिंग इन टू द क्लासरूम, हमारा जो टीचर है हमें सिखाने के लिए क्लासरूम में आ रहा है। हमें ऐसे भी हमें बना सकते हैं मैनी वीडियो सेंटेंस you can make my friends. Okay, so in and into, I hope you understood. Okay, so now we'll learn the by by means द्वारा, किसी के द्वारा। सपोज जो टाइगर है, टाइगर को किससे मारा गया है? एक शिकारी के द्वारा मारा गया है। द टाइगर इज किल्ड बाय ए हंटर, जो टाइगर है वो एक शिकारी के द्वारा मारा गया है। तो हमें इसके लिए बाय यूज कर सकते हैं। और बाय हमें कोई साइकिल के द्वारा जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, और कोई एरोप्लेन के द्वारा जाते हैं, तो इसके लिए भी हमें बाय यूज कर सकते हैं। और हमें जो चल के जाते हैं, कोई ऑटो से जाते हैं, तो हमें बाय यूज कर सकते हैं। चल के जाते, पग के द्वारा चलते हैं, तो हमें इसके लिए भी बाय यूज कर सकते हैं। तो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है? भारवी गोज टू स्कूल बाय बस, भारवी कैसे जाता है? चल के, पग से चल के जाता है। तो हमें भारवी गोज टू स्कूल बाय बस, भारवी गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस से जाता है। और भारवी गोज टू स्कूल बाय फुट, वो चल के भी जाता है, बाय बस से भी जाता है। ही गोज टू बाय ऑटो, ही गोज बाय बाईसाइकिल, ही गोज टू बाय हिज स्कूटी, और ही गोज टू बाय हिज फोर व्हीलर। ओके, वी कैन यूज मेनी सेंटेंस माय फ्रेंड. ओके, I hope that you understood me. Now we will learn the with, W-I-T-H, with. With means વડે, સાથેનો અર્થ સૂચવાય છે। કોઈ સાધકના સંદર્ભમાં વિથનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે વડે का यूज हम कर सकते हैं विथ। आई राइट विथ ए पेन, जो मेरे पास पेन है तो मैं पेन के साथ लिखती हूँ। ये पेन हमें कैसे यूज करना है? आई राइट विथ ए पेन, मैंने कुछ लिखा है, लेटर लिखा है, कुछ मैं पढ़ रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, लेसन कर रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ, तो हमें विथ का यूज करना है। आई राइट माई होमवर्क विथ माई पेन, आई राइट विथ ए पेन। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, मनीष गोज टू स्कूल विथ दर्शन, जो मनीष है वो दर्शन के साथ स्कूल जाता है। और आई गोज टू स्कूल विथ माई टीचर्स, और आई गोज टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, और आई गोज टू स्कूल विथ माई classmate, or I go to school with my parents. Okay, you can make the many sentences, my friend, but you have to follow. Now we will learn the on. on 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 means ऊपर, ऊपर में। on क्या है? एक स्थिरता के लिए बताया गया है। on, सपोज समझ लीजिए आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं एक कुर्सी पे बैठी हूँ, मैंने एक स्पर्श कर लिया है, मैंने इसके पर एक स्थान ले लिया है, एक जगह स्पर्श के साथ बैठी हूँ, इसीलिए आई सिट ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। मैं अभी क्या कर रही हूँ? सिटिंग कर रही हूँ, एक प्रेजेंट टेंस में मैं कुर्सी पे बैठ रही हूँ और क्या कर रही हूँ? मैं इंग्लिश में एक टीचिंग कर रही हूँ, मैं इंग्लिश में सिखा रही। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर्स एंड मेकिंग द वीडियोज और टीचिंग द इंग्लिश सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स। ओके, सो आई हैव यूज दिस ऑन फॉर स्थिरता के लिए, हमें एक स्थिर बताता है। ओके, एंड नाउ ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, और पग के द्वारा भी जाता है, एक स्थिरता में। जो पग है एक रोड के साथ स्पर्श हो जाता है। ही गोज ऑन स्कूल ऑन फुट, वो चल के स्कूल जाता है। यहाँ हमें इसके लिए इसलिए भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, अब हमें गति सूचता है, अब भी ऊपर, ऑन, up, over and above. These fourth words, this preposition fourth are there. ये सेम उसका ट्रांसलेशन होता है अब, लेकिन उसको यूज अलग अलग जगहों में होता है। ओके, सो यू टू अंडरस्टैंड ऑन, अप, ओवर एंड अबव। ऊपर 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 होता है, लेकिन उसको ऑन है एक स्पर्श बताता है, अप है गति सूचवता है, और जो ओवर है एक लटकती, घूमती और उड़ती, इसके लिए यूज कर सकते हैं। अभाव है एक दूसरे के जो टिंगाया गया है, एक दूसरे स्पर्श नहीं किया जाता है, इसके लिए हम अभाव यूज कर सकते हैं। सो यहाँ में अप आया है, अप एक गति सूचता है। गति कैसे करता है? कोई चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके लिए हमें अप करता है। तो ही क्लाइंब अप ए ट्री, तो ही एक लड़का है,
ये लड़का क्या कर रहा है, क्लाइंब अप, अप मीन्स ऊपर, ये लड़का है झाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, इसके लिए हमें अप यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज से नेक्स्ट सेंटेंस, आई गोइंग अप ऑन माई सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और आई एम गोइंग इन माई स्कूल्स in my third floor, my classroom is there, so I am going there. You can make sentence. Okay my friends, and now over, 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 over means अब ऊपर, ये भी हमें क्या सिखाता है, कुछ लटक रहा है और कुछ उड़ रहा है और घूमती है, इसके लिए हमें ओवर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, ही जम्प ओवर द पोल, ही जम्प, उसने क्या किया है, एक जंप लगाया है, किसके ऊपर जंप लगाया है, दीवार के ऊपर, तो उसको वो का कैसे यूज किया है, ही जंप ओवर द वॉल्स, उसने एक दीवार पे जंप लगाया है, उड़ती, एक उड़ान लगाया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन्स, जो पक्षियां है ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है, पक्षियों कहाँ उड़ रहे हैं, एक बगीचा के ऊपर उड़ रहा है, तो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन्स, जो पक्षियां है वो बगीचा पे उड़ रहे हैं। ओके माय फ्रेंड्स, सो दिस ओवर, अप एंड ऑन, दिस थ्री वी हैव लर्न। नाउ अभाव, ओ बी वी ई, ओ बी ओ वी ई, अभाव मीन्स ऊपर, ओ भी ऊपर है, तो हमें इसको कैसे यूज करना है, वो एक चीज के ऊपर कुछ टिंगाया गया है, लटकाया गया है, और वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, वहां हमें यूज करना है। सपोज समझिए पंखा है, ये पंखा मेरे पे घूम रहा है, तो हमें उसके लिए कैसे यूज करना है, द फैन इज फ्लाइंग ओवर मी, पंखा है वो मेरे पर घूम रहा है, इसके लिए हमें ओवर यूज करना है, इसके लिए ऑन अप नहीं यूज करना है, उसके लिए हमें ओवर ही यूज करना है। फैन इज फ्लाइंग ओवर मी, पंखा मेरे पर घूम रहा है, और अभाव है वो एक टिंगाया गया, कोई चीज एक दूसरे के टिंगाया गया, स्पर्श करने के बिना, तो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, द फोटोग्राफ इज अभाव द ब्लैक बोर्ड, जो फोटोग्राफ है, जो कोई हमारे बच्चे का फोटा है, हमारे पेरेंट्स का है, और हमारा खुद का है, किसी का भी है, हमने अच्छा से बना के रखा है कोई फोटोग्राफ के ऊपर, तो हमें कैसे उसको बनाना है, द फोटोग्राफ इज अबाउट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या है, फोटोग्राफ हमने टिंगाया है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, एक दूसरे को अंतर है बीच में रखा है, तो हमें उसका सेंटेंस इससे बनाते हैं, ही इज अबाउट मी, ये मेरे ऊपर में है, कौन, ही मीन्स एक लड़का है, ही इज अबाउट मी इन द क्लासरूम, वो मेरे क्लासरूम के ऊपर में है, एक दूसरे को रूम है जो एक दूसरे को स्पर्श करके नहीं है, एक दूसरे को फ्लोर के ऊपर है, इसलिए ही इज अबाउट मी इन द क्लासरूम, मेरे क्लासरूम के ऊपर में है, जो कोई लड़का है वो मेरे क्लासरूम के ऊपर में है, हम ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। ओके, फिर अंडर, अंडर हमें कैसे यूज करना है, UNDER, अंडर, नीचे, हेठड़, किसी के झाड़ के नीचे है, और कोई गाड़ी के नीचे है, कोई टेबल के नीचे है, कोई चेयर के नीचे है, बेड के नीचे है, और कुछ बड़ा ट्रेन के नीचे है, बस के नीचे है, तो हमें इसके लिए क्या यूज करना है, अंडर। कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, द काव इज अंडर ए ट्री, जो झाड़ के नीचे कौन है, एक गाय है, वो गाय क्या कर रही है, कुछ घास खा रही है, आराम कर रही है, पानी पी रही है, कुछ कर रही है, तो हमें उसका सेंटेंस कैसे यूज करना है, ये अंडर कैसे यूज करना है, द काव इज अंडर ए ट्री, झाड़ के नीचे गाय है, द काव इज सिटिंग अंडर ए ट्री, जो झाड़ के नीचे गाय बैठ रही है, द काव इज ईटिंग घास अंडर ए ट्री, झाड़ के नीचे जो गाय है वो एक घास खा रही है। ओके, सो यू कैन मेक द मेनी सेंटेंस। हियर आफ्टर, आफ्टर हमें कैसे यूज करना है, पछी, आफ्टर है पछी, यूज कर, वो समय के लिए भी बताता है और कुछ उसको एक गति के संदर्भ में भी उसको यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते, गति के संदर्भ बताता है, एक समय के लिए बताता है।
तो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है? द डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। जो डॉग है क्या कर रहे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक कार्य गति कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। डॉग है, कुत्ता है, एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है। द डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा है? कुत्ता। कुत्ता रनिंग कर रहा है, रनिंग मीन्स भाग रहा है। द डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता भाग रहा है। और दूसरा हमें एक समय के लिए बताया गया है, ये जो है एक गति के लिए बताया गया है, और हमें उसका समय के लिए कैसे यूज करना है? ही विल कम आफ्टर एन आवर। वो जो लड़का है 1 घंटा के बाद आएगा। ही विल मीन्स एक फ्यूचर टेंस बताया गया है, एक समय बताया गया है, कब आएगा उसका कोई टाइम्स, कोई फिक्स टाइम नहीं बताए। फ्यूचर टेंस में कभी भी आ सकता है। ओके, सो ही विल कम आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटा के बाद आएगा। फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस बनाया गया है, he will come after an hour. Okay my friends, so I hope that you might have understood all these things. Only 10 prepositions I have taught you my friends. So if you could not understand my friends, please comment me. I will give you some ideas how you have to learn this preposition and how you have to apply in your daily life, in your routine life, in your life, in your English journeys. Okay my friends, so I hope that you follow this all those things, grammar things, then you can improve your English. Okay my friends, so I hope you might know. So we will meet in next time. So तब तक के लिए bye.